Hello students, welcome back, and on your demand we are here with the DBMS series. So from today we are going to start with the database management system subject for diploma second year. This is unit number 1, which is introduction to database system. Now this unit stands for 12 marks in total, so you're going to get fixed 12 marks question on this topic, and optional it will be different, right? So let's just start. This is a pictorial representation which is generally seen for a database, right? Next. So in this unit, what we are going to study the basic concepts related to database, right? Which is data, what is data, what is database, what is database management system, then how a system is different from the database system, then some applications, data concepts like data abstraction, independence, schemas, then the famous chords rules on DBMS we're going to study, right? The overall structure of the database. In 1.2, there is the whole architecture. So there are two types of architecture of database. One is two-tier and this another one is three-tier. And lastly, in this unit, we will be studying data models, which is hierarchical, networking, and relational. Three types of models we're going to study. Now for this video, we are going to cover the whole 1.1, which is database concepts from this unit, right? So let's just start with the basic concepts of database, right? Database. What is this word made up of? Data, right? उसका simple form अगर हम देखें database का तो वो क्या होता है? Data. Now, before studying database, it's very important for you to understand कि data का मतलब क्या है in the database, right? So what is data? Now, data can be facts, right? और figures, मतलब number भी हो सकते हैं या कुछ like textual records भी हो सकते हैं, right? वो जो आप आपके system में store करते हो and there is some मीनिंग टू इट, राइट? अगर हम अपने सिस्टम में मीनिंगलेस डेटा स्टोर करते हैं क्या कभी? नो, we always store some meaningful data which will be required to us further, right? तो जो डेटा हमने हमारे सिस्टम में स्टोर किया है which has some special meaning to it and which contains alphabets, numbers, alphanumeric data or even bits 0 and 1, तो वो सब डेटा is required for the database, right? अगर हम एग्जांपल देखें तो 50 एक न्यूमेरिक डेटा है, whereas Alexa एक textual डेटा है, ठीक है? अभी this is what it is basically collection of information needed by the organization, right? कोई भी organization अपना डेटा किस में स्टोर करती है? डेटाबेस सिस्टम में, ठीक है? मेटा डेटा. नाउ दिस इज थोड़ा एडवांस कंसेप्ट ऑफ डेटा. डेटा मतलब क्या? डेटा अबाउट डेटा, मतलब जो हम डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है वो डेटा के रिलेटेड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेटा डेटा, ठीक है? अगर आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में आपका डेटा सभी डेटा लाइक स्टूडेंट डेटा, स्टाफ डेटा, एडमिशन डेटा, फीस डेटा, ये सब कैसे स्टोर होता है? एक उनका पर्टिकुलर डेटाबेस होता है, ठीक है? तो वो डेटाबेस में वो क्या करते हैं? सब ऑर्गेनाइज करते हैं कि एडमिन का अलग डेटा होगा, स्टाफ का डेटा अलग होगा, एंड यूजिंग दैट डेटा न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड और पास्ड आउट स्टूडेंट्स आर रिमूव्ड, या फिर टीचर में कोई चेंजेस आ गए या सब्जेक्ट्स में कोई चेंजेस आ गए, तो वो सब जो रिट्राइविंग, इंसर्टिंग और डिलीटिंग जो काम है वो डेटाबेस में ऑकर होता है. इसलिए वो क्या है? एक सिस्टमैटिक वे है टू स्टोर डेटा इन योर सिस्टम. नाउ द सेकंड कंसेप्ट इज डेटाबेस. हमने देखा डेटा क्या होता है, अभी हम देखेंगे डेटाबेस क्या होता है, ठीक है? डेटाबेस मतलब क्या? रिलेटेड डेटा का कलेक्शन, राइट? मतलब वी स्टोर अ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा and we make a collection of it and store it at a single location. उसे हम क्या कहते हैं? डेटाबेस, right? Database means information that is set up for easy access, management and updation. जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि इजीली एक्सेस कर सकते हैं हम कोई भी इंफॉर्मेशन, मैनेज कर सकते हैं डेटा और अपडेट भी कर सकते हैं कोई चेंजेस आए तो, ठीक है? Computer databases typically store aggregations of data records or files that contain informations like sales transactions, customer data, finances, and product information, right? तो कंप्यूटर डेटाबेस में क्या होगा कि
हम एग्रीगेशंस ऑफ डेटा रिकॉर्ड, मतलब क्या, टोटली हम वो डेटा स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है, कलेक्शन स्टोर कर रहे होंगे। तो वो कलेक्शन में क्या आ सकता है, फाइनेंशियल्स आ सकता है, प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ सकती है, या फिर जनरल कंपनी के ट्रांजैक्शन आ सकते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। नाउ व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? यही कंसेप्ट के ऊपर आपका एक पूरा सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में बेस्ड है। तो बिफोर गोइंग एनी फर्दर यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। इवन इफ यू, मतलब अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, you should be able to tell them in a single meaningful line कि what is database management system, ठीक है। अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, विच इज डीबीएमएस, और यू कैन से एब्रिविएशन फॉर दैट सब्जेक्ट। अभी व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग मोर देन अ कंप्यूटराइज्ड डेटा कीपिंग, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम अगर किसी रिसेप्शन में गए, लाइक रिसेप्शनिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसेप्शन एट एनी ऑफिस और थिंग, तो वो रिसेप्शन में हम जाते हैं, तो उधर देयर इज अ बुक विच मेंटेन्स रिकॉर्ड्स कि कौन आ गया, कौन बाहर गया, लाइक बेसिकली in previous like period, like when we were in school, there used to be a book for teachers to sign कि check in time, check out time, बट नाउ इट हैज बिकम डिजिटलाइज्ड। क्या होता है, फिंगर प्रिंटिंग होता है। उसके वजह से क्या होता है, जो भी रिडंडेंसीज थे उसमें, रिडंडेंसीज मतलब क्या, जो डुप्लीकेशन थे या कुछ किसी ने मैनेज किया होगा, इफ समवन कम्स एट 9:50 बट दे राइट देयर 9:45, तो वो कोई ऐसा इंटीग्रिटी डेटा का मेंटेन नहीं होता था। इसलिए व्हाट दे हैव डन इज दे हैव जस्ट पुट द फिंगरप्रिंट नाउडेज, बट पहले के जमाने में व्हाट इट यूज्ड टू बी, देयर यूज्ड टू बी अ बुक फॉर रिकॉर्ड्स। तो जब हम कंप्यूटराइज्ड डेटा स्टोर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ यूजर्स ऑफ दिस सिस्टम आर गिवन फैसिलिटीज टू परफॉर्म सेवरल काइंड ऑफ ऑपरेशंस ऑन सच सिस्टम, ठीक है। तो जो भी उसके यूजर्स रहेंगे डेटाबेस के, उन्हें ही सिर्फ उसके रिलेटेड ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, मॉडिफिकेशन या ऑपरेशंस एक लिमिटेड सेट ऑफ यूजर्स ही कर सकते हैं, ठीक है। क्या आप आपके कॉलेज का डेटाबेस एक्सेस कर सकते हो? डू यू गेट दैट परमिशन फ्रॉम द कॉलेज? नो, देयर इज अ स्पेसिफिक टीम असाइंड टू मैनेज द डेटाबेस रिलेटेड टू कॉलेज। तो कुछ ऑथराइज्ड यूजर्स के पास ही उसका एक्सेस होता है, जो उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो डेटाबेस इज, डीबीएमएस इज बेसिकली सॉफ्टवेयर सिस्टम्स यूज्ड टू स्टोर, रिट्रीव एंड रन क्वेरीज ऑन द डेटा। उसकी ही डेफिनेशन है, सेम मीनिंग है, सिर्फ डिफरेंट वर्ड्स में दिया है, ठीक है। नाउ इट्स बेसिकली इंटरफेस, एंड यूजर और डेटाबेस के जो बीच का जो इंटरफेस है, मतलब क्या, द ब्रिज बिटवीन अ यूजर एंड द डेटाबेस इज व्हाट, डीबीएमएस, ठीक है। तो यूजर्स क्या कर सकते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, राइट। नाउ दिस इज द सिंपल, ये वर्किंग है, बेसिक वर्किंग है डेटाबेस का, ठीक है। तो इधर क्या डिनोट करे हैं, तीन एप्लीकेशंस है, ठीक है, तीन जनरल एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन 1, 2 एंड 3। नाउ इसमें क्या होता है, ये एप्लीकेशन, दिस इज डीबीएमएस विच इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये क्या है, डेटाबेस है जिसमें सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोर है, मतलब एवरीथिंग इन वन प्लेस। अभी डीबीएमएस क्या करेगा कि इट विल मैनेज द डेटा रिसोर्सेज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो भी डेटा आएगा इन एप्स के द्वारा, इट विल बी सेंट टू, it will be sent to DBMS first, and DBMS उसे फिर आपके सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर करेगा। तो ये क्या हुआ, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कौन यूज करता है, एंड यूजर्स और डेटाबेस के बीच में का ब्रिज, विच वी सॉ इन द प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर आपको 6 मार्क का क्वेश्चन आया रिगार्डिंग DBMS, तो you can fetch extra marks because of this diagram, right? So remember it, otherwise screenshot it, right? नाउ फाइल सिस्टम और डीबीएमएस, जब डीबीएमएस था ही नहीं मार्केट में, तो क्या यूज करते थे हम, फाइल सिस्टम्स। तो इसका एक छोटा सा कंपैरिजन इधर है, ये एग्जाम में भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस, सो यू कैन जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट और स्क्रीनशॉट इट एज पर यू लाइक। सो फर्स्ट में डेटा स्टोरेज, अभी फाइल सिस्टम और डीबीएमएस दोनों में कैसे डेटा स्टोर होता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज फाइल सिस्टम में क्या होगा, प्लेन सिंपल फाइल्स में
ठीक है, हम डेटा स्टोर करेंगे, ऑलराइट। बट डीबीएमएस में वी विल स्टोर इट इन टेबल्स, स्ट्रक्चर्ड टेबल्स। जो भी डेटा हम डेटाबेस में हमें पुट करना है वो हम टेबल्स के फॉर्म में करेंगे, बट फाइल्स में, फाइल सिस्टम में हम फाइल्स के फॉर्म में करेंगे। अभी रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब क्या, डुप्लीकेशंस, बेसिक, ठीक है। देर इज लाइक a 4 line definition for data redundancy, but what you should remember is duplications within the data is known as data redundancy, right? Now data redundancy फाइल सिस्टम में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि सेम डेटा रिपीट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसे कोई ऐसे वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं होता फाइल सिस्टम में कि आप, अगर आप दो फाइल सेम डेटा के साथ स्टोर कर सकते हो फाइल सिस्टम में, पर डेटाबेस में वो आप नहीं कर सकते। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा डेटाबेस रिलेटेड, तो प्राइमरी की नाम का एक कंसेप्ट होता है जिसमें हम यूनिक डेटा ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो डीबीएमएस में वो पॉसिबल नहीं होता बहुत हद तक, पर फाइल सिस्टम में रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशंस आ सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी मतलब क्या, ट्रस्ट ऑन द डेटा, राइट। डेटा कितना ट्रू है और कितना फॉल्स है वो हम देखेंगे। और डेटा इंटीग्रिटी मतलब देर इज नो इनबिल्ट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है, कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि वो डेटा का ट्रूथफुलनेस चेक कर सके। बट डीबीएमएस में प्राइमरी की और फॉरेन की यू कैन यूज इट एंड यू कैन जस्ट check whether the data is like it has integrity or not, ठीक है। शेयरिंग क्या है, पुअर शेयरिंग है, क्योंकि फाइल्स मैन्युअली हैंडल करना पड़ती है, यू नीड टू शेयर द फाइल्स वन बाय वन। और डीबीएमएस में क्या होता है, इजी शेयरिंग है, कंट्रोल शेयरिंग है। if you give access to somebody to your database, he or she can easily access all the data stored in it, right? सिक्योरिटी कैसी है, एप्लीकेशन लेवल की है। बट डीबीएमएस में बिल्ट इन ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, मतलब ओनली अ सेट ऑफ यूजर्स कैन एक्सेस द डेटा, कोई भी आके आपके डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। बट फाइल सिस्टम में बहुत ही एप्लीकेशन लाइक छोटे लेवल की सिक्योरिटी है जो इजीली क्रैक हो सकती है, ठीक है। कॉन्करेंसी कंट्रोल, देयर इज नो प्रॉपर मैकेनिज्म, एंड बट in DBMS it is handled by transaction management, right? नाउ क्या आपको पता है व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्करेंसी? ओके, सो आई विल टेल यू। कॉन्करेंसी मतलब जब हम डेटाबेस में साइमल्टेनियस ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो उनके बीच में कंसिस्टेंसी होने चाहिए, मतलब वो बीच बीच में अगर बंद पड़े, लाइक दे शुड नॉट स्टॉप इन द मिडिल, कि एक प्रोसेस की वजह से दूसरी प्रोसेस स्टॉप हो रही है, दिस शुड नॉट हैपन। और कॉन्फ्लिक्ट्स, जो प्रोसेसेस का कन्फ्लिक्टिंग होता है वो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, कॉन्करेंसी मतलब साइमल्टेनियस ऑपरेशंस बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द डेटाबेस। तो फाइल सिस्टम में उसके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, बट डेटाबेस में है, ठीक है। नाउ बैकअप एंड रिकवरी। नाउ बैकअप यूजर को मैन्युअली करना पड़ता है फाइल्स का, ठीक है। अगर 10 न्यू फाइल्स क्रिएट करे तो उनका बैकअप आपको खुद को लेना पड़ता है, लेकिन डेटाबेस में वो ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाता है, उसकी रिकवरी भी हो जाती है, ठीक है। कंसिस्टेंसी, ठीक है, डेटा कंसिस्टेंसी कैसी है फाइल सिस्टम्स में? नाउ व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी मतलब कि वो डेटा कितना एक्यूरेट है या वैलिड है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स दैट वी हैव अप्लाइड इन द डेटाबेस, ठीक है। तो उस डेटा कंसिस्टेंसी फाइल सिस्टम में बहुत पुअर होती है, क्योंकि उधर मैनुअल चेकिंग होता है, लेकिन डीबीएमएस में ऑलरेडी मैकेनिज्म है, हम एसिड प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। अभी एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम अगले लेक्चर्स में देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ हम रूल्स लगाते हैं, वैलिडेशंस लगाते हैं, उसके हिसाब से डेटा कंसिस्टेंसी इज गुड इन डीबीएमएस। क्वेरी लैंग्वेज। नाउ क्वेरी लैंग्वेज क्या, हमें कस्टम प्रोग्राम्स क्वेरीज के लिए क्रिएट करने पड़ते हैं, लेकिन डीबीएमएस में एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर क्वेरिंग द डेटा, ठीक है। अभी इंडिपेंडेंस कैसा होता है, पुअर होता है फाइल सिस्टम में। चेंज इन स्ट्रक्चर रिक्वायर्स ऐप चेंज, अगर आपने कोई डेटा के चेंजेस में स्ट्रक्चर में चेंजेस करे तो यू नीड टू ऑल्सो डू द सेम इन द ऐप, एट द ऐप लेवल, ठीक है। और डीबीएमएस में डेटा इंडिपेंडेंस कैसे, हाई है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इसका सेटअप कॉस्ट बहुत कम है, सिंपल है मैनेज करने के लिए, लेकिन डीबीएमएस का हाई सेटअप कॉस्ट है और कॉम्प्लेक्स है, लाइक ओनली टेक्निकल पीपल कैन हैंडल द डेटाबेस, बट फाइल सिस्टम कैन बी हैंडल्ड बाय एनीबॉडी हु जस्ट नोज द बेसिक्स, ठीक है, ऑफ स्टोरिंग डेटा। नाउ
we're going to see the applications of database. अभी applications कौन से fields में है वो हम देखते हैं. पहले तो है banking, ठीक है. बैंकिंग के बाद आता है रेलवेज और एयरलाइंस, एजुकेशन, ई कॉमर्स, देन वी हैव हेल्थ केयर एंड टेलीकॉम. नाउ बैंकिंग में कैसे हम जो अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस, लोन्स, एनीथिंग वी मैनेज, तो वो डेटाबेस के द्वारा होता है. उसके बाद रेलवे और एयरलाइन में टिकट बुकिंग, शेड्यूलिंग, कैंसिलेशन सब डेटाबेस हैंडल करता है. एजुकेशन में स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस, एग्जाम रिजल्ट, स्टाफ का इंफॉर्मेशन, एडमिन का, अकाउंटिंग का जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में स्टोर होता है. ई कॉमर्स में यू कैन ऐड टू कार्ट, ट्रैक प्रोडक्ट्स, ट्रैक द डिलीवरी, ऑर्डर्स, कस्टमर डेटा, कस्टमर हेल्प, ये सब डेटाबेस का फंक्शनिंग है. उसके बाद हेल्थ केयर में पेशेंट के रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री, अपॉइंटमेंट्स, बिलिंग, ये सब स्टोर होता है. और टेलीकॉम में कॉल डेटा, रिकॉर्डिंग, सब्सक्रिप्शंस और बिलिंग, ये सब टेली लाइक डीबीएमएस में ही स्टोर होता है. So you can just screenshot it because this is again an important point from the point of view of exam. Now we have database application और बहुत सारे इधर applications मैंने list करे हैं. You can just check it out. Now characteristics of DBMS. What are characteristics? Characteristics मतलब in simple words features of DBMS. तो जो भी हमने पहले देखो, कॉन्करेंसी हमने पढ़ा पहले, इंडिपेंडेंस पढ़ा, सिक्योरिटी पढ़ा, इंटीग्रिटी पढ़ा. तो व्हाट इट रियली मीन्स, अगर आप गूगल करोगे या फिर आप आपके कॉलेज नोट्स देखोगे तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स की बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस आपको देखने मिलेगी. बट हियर आई हैव वेरी सिंपली पुट कि क्या होता है और कैसे होता है. लेकिन इन वेरी सिंपल वर्ड्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट, राइट. डेटा इंटीग्रिटी. व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी? कितना डेटा एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है और जो भी आपने रूल्स डिफाइन किए उन्हें फॉलो करता है, वैसा डेटा क्या होता है, इंटीग्रिटी मेंटेन करता है. सिक्योरिटी मतलब क्या? You should not provide access to unauthorized users and there should be no security breaches. ठीक है. उसके बाद इंडिपेंडेंस मतलब क्या? अलाउज द चेंजेस इन द डेटा स्ट्रक्चर विदाउट अफेक्टिंग एप्लीकेशन. अगर आप किसी डेटा रिकॉर्ड में चेंजेस करते हो तो इट शुड नॉट अफेक्ट द अदर डेटा स्टोर्ड इन द एप्लीकेशन. ठीक है, दैट इज डेटा इंडिपेंडेंस. जो हमने देखा फाइल सिस्टम में कैसा था, कम एंड डाउन. ठीक है. ट्रांजैक्शन कंट्रोल. ट्रांजैक्शन कंट्रोल मतलब क्या कि कमिट और रोल बैक के दो ऑपरेशन थे. मतलब इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से अनडू एंड रीडू. ठीक है, जो हम आगे देखेंगे तो वो ऑपरेशंस को वो मैनेज करता है. कॉन्करेंसी हमने पढ़ा कि कॉन्करेंसी मतलब क्या, साइमल्टेनियस ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं वो एबिलिटी को कॉन्करेंसी बोलते हैं. तो मल्टीपल यूजर्स एक्सेसिंग द डेटा साइमल्टेनियसली विदाउट कंफ्लिक्टिंग. तो ये इंश्योर करता है कौन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. रिकवरी, जो भी डेटा करप्ट हुआ है, हैक हुआ है, लॉस्ट हुआ है, कुछ फेलियर आ गया है तो वो रिस्टोर करना है, रिकवर करना है, तो वो भी हम डेटाबेस के मदद से हम कर सकते हैं. ठीक है, तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस. अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो देयर इज नो स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन्ड अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लेकिन you have to mention it in exam while writing about DBMS, or otherwise question can directly come as advantages and disadvantages of DBMS. So make sure that you do not miss such important points also which are not mentioned in the syllabus but that can surely come. Okay, now advantages. एडवांटेजेस क्या, डेटा रिडंडेंसी मतलब जो भी डिप्लीकेशन है डेटा में वो कम होते हैं. और उसके बाद डेटा सिक्योरिटी बेटर होती है, शेयरिंग और एक्सेस इजी होता है. कंसिस्टेंसी मतलब क्या, साइमल्टेनियसली आप बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे यूजर्स परफॉर्म कर सकते हैं उसी एक डेटाबेस में. डेटा इंटीग्रिटी मतलब क्या, वैलिड डेटा ही आता है डेटाबेस में. ठीक है, इनवैलिड आया तो वो रिजेक्ट हो जाता है. और बैकअप और रिकवरी फास्ट होती है, ऑटोमेटिक होती है. ठीक है, झंझट नहीं होती कि मैन्युअली आप सब काम करो लाइक इन द फाइल सिस्टम वी सॉ. डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत ज्यादा फाइनेंसेस यू नीड फॉर द डेटाबेस थिंग. उसके बाद आपको स्किल्ड प्रोफेशनल्स, ओनली टेक्निकल पीपल कैन हैंडल द डेटाबेस व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर.
कोई भी अगर आप लेमैन को बिठाओगे टू हैंडल योर डेटाबेस, देन इट्स गोना क्रैश डेफिनेटली, ठीक है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रूल्स, कंस्ट्रेंट्स एंड प्रिकॉशंस व्हिच शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग योर डेटा, ठीक है, बिकॉज यू कैन सी डेटा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट का डेटा आउटेज हुआ था लास्ट ईयर, यू कैन रीड द आर्टिकल अबाउट इट and what loss it caused to the company. People का obviously data breach हुआ ही, like हुआ ही breach, but जो कंपनी को जो लॉस हुआ वो बहुत ज्यादा था, ठीक है. So you can read article about it, it's interesting. Okay, now next point is data abstraction, right? Data abstraction, what is data abstraction? Hiding unwanted or irrelevant details from the end user, ठीक है. सी, जब हम यूजर के हिसाब से अगर आप एप्लीकेशन को यूज करो, ठीक है, अगर आपने लिया व्हाट्सएप, अभी व्हाट्सएप में जब आप जाते हो तो व्हाट यू सी, यू जस्ट सी चैट्स, स्टेटसेस, कॉल्स, कम्युनिटीज. क्या आपको उससे फर्क पड़ता है कि ये कम्युनिटीज कैसे आई, कैसे वर्क करता है? जब हम मैसेज किसी को सेंड करते हैं तो इनक्रिप्शन का प्रोसेस क्या आपको देखने में कोई इंटरेस्ट है? अगर व्हाट्सएप आपको दिखाने लगा तो व्हाट यू विल से, इट्स अ यूजलेस एप्लीकेशन बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इररिलेवेंट हमें दिखा रहा है व्हाट्सएप. तो उसके लिए जो हमें डेटा हाइड करना पड़ता है, दैट कम्स अंडर डेटा एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट, ठीक है. It provides a different view and helps in achieving independence, which is used to enhance the security of the data. अभी abstraction से क्या होता है कि हम independence achieve कर सकते हैं. What is independence? We saw earlier, ठीक है, used to enhance the security of data. The database system consists of complicated data structure and relations, ठीक है. database में कैसे होता है, complicated, complex data हम store करते हैं. जो भी डेटा है वो सभी डेटा में कुछ रिलेशंस होते हैं, ठीक है. Like we store relative data, relevant data for users to access the data easily. These complications are kept hidden. अगर हम encryption WhatsApp के सी, एक ad आती है अभी टीवी पर कि your messages are encrypted. अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो क्या आपको कोई इंटरेस्ट होगा कि आप इनक्रिप्शन की प्रोसेस देखोगे, वो कॉम्प्लेक्सिटीज में जाओगे? ऑब्वियसली नॉट. तो वो उसके लिए वो जो हम जिस मैकेनिज्म से वो सब हाइड कर सकते हैं वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन. ओनली रेलेवेंट पार्ट्स आर केप्ट फॉर द यूजर्स. जो भी हम ओनली क्या होता है यूजर्स के लिए, सेंड बटन, टाइप अ मैसेज, सेंड बटन, टाइप अ मैसेज, सेंड बटन, रिसीव, नोटिफिकेशन, कीप स्टेटस, डिलीट स्टेटस, ये सब क्या है, सिर्फ फीचर्स है व्हाट्सएप के जो हम एक्सेस कर पाते हैं. उसका बिहाइंड मैकेनिज्म क्या आपको पता है? क्या आपको इंटरेस्ट है वो जानने में? ऑब्वियसली नॉट. नेक्स्ट पॉइंट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन. नाउ ये डायग्राम है, यू कैन लाइक रियली सी इट. Even you can draw it for the exams. It will fetch you extra marks. Data abstraction, तीन व्यूज है. व्यू लेवल आप एक्सटर्नल व्यू भी बोल सकते हो, फिर आती है लॉजिक लेवल और फिर आती है फिजिकल लेवल. व्यू लेवल मतलब क्या कि यूजर एक्सटर्नल लेवल पे क्या होता है कि डेटा कैसे देख सकता है आपके लाइक यूजर कैसे देख सकता है आपके एप्लीकेशन को, वो क्या होता है व्यू लेवल में डिफाइंड होता है. लॉजिक लेवल में क्या होता है, डेटा प्रॉपर्टीज डिफाइंड होती है, डेटा के बीच में के रिलेशनशिप्स, उसका सिमेंटिक्स, वो जो भी टेक्निकल लॉजिकल सिंटैक्टिकल पार्ट है डेटा का, वो लॉजिकल लेवल में स्टोर होता है. उसके बाद देयर इज अ फिजिकल लेवल. अब फिजिकल लेवल में क्या होता है कि हाउ इट इज एक्चुअली बीइंग स्टोर्ड इन द डेटाबेस, किस फाइल सिस्टम में वो स्टोर हो रहा है, क्या हम डिस्क यूज कर रहे हैं, वो सब like hardware you can mostly say, you can see in physical level. Next point, 3 levels of abstraction जो कि है फिजिकल और इंटरनल. ये लेवल को आप इंटरनल लेवल भी बोल सकते हो, लॉजिकल को आप कंसेप्चुअल भी बोल सकते हो और व्यू को एक्सटर्नल भी बोल सकते हो, ठीक है. उसके बाद now पिछली वाली डायग्राम also you can just note it on your notebook, it's important.
ठीक है। लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, व्यूज भी बोल सकते हैं। अभी फिजिकल लेवल में क्या होता है कि डिस्क्राइब्स हाउ अ रिकॉर्ड इज एक्चुअली स्टोर्ड, ठीक है। जो भी लोअर लेवल फंक्शनिंग है, कैसे डेटा आ रहा है, जा रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, एडिट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, वो सब फिजिकल लेवल में डिफाइंड है। उसके बाद लॉजिकल लेवल में क्या होता है कि कैसे डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस कैसे है और उसका रिलेशनशिप क्या है। अभी कस्टमर, ठीक है, कस्टमर का रिकॉर्ड है। कस्टमर में क्या क्या रिलेशनशिप्स है, आईडी है, नेम है, स्ट्रीट है, सिटी है एंड अदर थिंग्स। व्यू में क्या होता है, एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनल डिटेल्स हाइड करते हैं और जो भी यूजर को नीडेड है उतना ही डेटा विजिबल होता है उस लेवल पर, ठीक है। अभी डेटाबेस स्कीमा, नेक्स्ट पॉइंट इज डेटाबेस स्कीमा। नाउ द व्यूज वी सॉ, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल। अभी स्कीमा क्या है, स्ट्रक्चर है that represents the logical view of the entire database, ठीक है। It's basically the logical view of the database. वो डिफाइन करता है कि कैसे डेटा ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या कौन से रूल्स आपको अप्लाई करने हैं, क्या वैलिडेशन चाहिए, क्या कंस्ट्रेंट्स चाहिए, अगर आपको प्राइमरी की लगानी है या फॉरेन की लगानी है, नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाना है, क्या एक्चुअली आपको कैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए आपके डेटा का, वो हम डेटाबेस स्कीमा से डिफाइन कर सकते हैं। Okay, so that's what is database schema. You can also draw this particular diagram when this, इस पे कोई ऐसे independent question नहीं आ सकता है, आया तो भी you can write this, नहीं आया database के related आप सब point schema भी explain कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद see, so we saw the database schema. Now data independence, okay. Now what is database independence? Database independence मतलब क्या कि we can modify a particular data without affecting the other applications programs, ठीक है। ऐसा हुआ कि अगर हम एक टेबल को एडिट करते और दूसरे टेबल का डेटा ही उड़ गया या मॉडिफाई हो गया, डिलीट हो गया, तो विल इट बी ओके? Obviously not, right? So it's basically the ability to modify the scheme without affecting the programs and applications. Data is separated from the program under this concept of independence, right? So the changes made to the data will not affect the program execution and application. Okay? There are two levels of data independence. क्या है? Physical data independence, logical data independence, right? Now, what is physical data independence? मतलब क्या? Changing the physical level without affecting the logic or conceptual level. जब भी हम, जो bottom most आपकी कौन सी level थी database के ऊपर, physical level, तो उसमें कोई आपको अगर आपने changes करे तो it should not affect the logical level जो उसके ऊपर थी. Using this property, we can change the storage device of the database without affecting the logical schema. अभी physical changes क्या हो सकते हैं? अगर आपने स्टोरेज डिवाइस चेंज किया, डेटा स्ट्रक्चर को ऐड किया, या फिर कोई मेथड चेंज की डेटा एक्सेस के, कोई किसी न्यू यूजर को ऐड किया, पासवर्ड चेंज किया या लोकेशन चेंज किया डेटाबेस का, तो वो जो चेंजेस है वो ऊपर वाले लेवल्स मतलब लॉजिकल और एक्सटर्नल लेवल में रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए. दैट इज व्हाट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, राइट. Now the next point comes, which is logical data independence. Now what is logical data independence? मतलब क्या, जो भी user view है data, ठीक है, it presents data in the form that can be accessed by the end user. जो अगर हम logical data में कोई changes करते हैं वो directly users को reflect होता है, ठीक है. अभी क्या changes हो सकते हैं, कोई किसी की data definition change हो सकती है, adding हो सकता है, deletion होता है, updation होता है किसी रिकॉर्ड का डेटाबेस में, राइट. तो वो सब किसके अंडर आता है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के अंडर, राइट. नाउ कॉर्ड्स, नाउ दीज आर द फेमस रूल्स रिलेटेड टू डीबीएमएस. अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो, कॉलेज के नोट्स रेफर करते हो या टेक्स्ट बुक्स फॉर दैट मैटर इफ यू रेफर, तो ये जो रूल्स है ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको एक्सप्लेन या फिर स्टेट करे गए हैं. But today, in this video, I've really simplified it and like put it in the slide for all of you, right? तो ये कुछ rules है जो हम देखेंगे. फर्स्ट रूल आता है रूल नंबर 1.
which is the information rule. क्या बोलती है information rule? क्या बोलता है information rule? What is that? It means all data must be stored as values in the table cells. जो भी आप data store करोगे वो tabular form में ही values के form में ही store होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद second is the guaranteed access rule. क्या है guaranteed access rule? जो भी data element है वो कैसे access होना चाहिए? टेबल नेम स्पेसिफाई करेगा यूजर, प्राइमरी की स्पेसिफाई करेगा और कॉलम नेम जो अगर स्पेसिफाई होता है तो ही आपको डेटा एलिमेंट विजिबल होना चाहिए. ठीक है. रोल नंबर 3, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज. नल वैल्यूज अगर कोई टेबल है, सपोज ये एक टेबल है, इसमें 2 कॉलम्स है, इधर आपने डेटा स्टोर किया, इधर स्टोर किया, इधर स्टोर किया और इधर कोई डेटा नहीं है, तो ये नल वैल्यूज जो होती है टेबल में वो अच्छे से हैंडल होनी चाहिए, अदरवाइज ये पूरा डेटा करप्ट हो सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. उसके बाद रूल नंबर 4 विच इज एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग रूल कि मेटा डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड एक्सेसिबल लाइक रेगुलर डेटा. मेटा डेटा मतलब क्या? इंफॉर्मेशन और डेटा अबाउट डेटा. जो भी आप इधर आपने डेटा स्टोर किया है इसके रिलेटेड अगेन जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो ऑनलाइन कैटलॉग में स्टोर किया होना चाहिए. रोल नंबर 5 विच इज द कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल. DBMS को हम मैनिपुलेट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज जनरली यूज करते हैं? SQL. तो SQL की तरह अदर क्लियर लैंग्वेजेस DBMS ने सपोर्ट करने चाहिए. रूल नंबर 6, the view updating rule. Views that can be theoretically be updated must also be updatable by the database. ठीक है. जो भी हम डेफिनेशन चेंज करते हैं अगर डेटाबेस में, वो मतलब व्यूज में वो डेटाबेस में भी अपडेट होना चाहिए. रूल नंबर 7 विच इज हाई लेवल इंसर्ट अपडेट डिलीट. Data must be modifiable with single command that can act on multiple rows at once. Is it possible that you write a single delete statement and you can delete like 5 rows at once? Yes, it is very much possible. And why it is possible? Because it is because of rule number 7, right? And then what we have is rule number 8, physical data independence. हमने देखा, logical देखा. ठीक है. What is physical? Means whatever you do changes in the physical level should not affect applications, right? Physically जो हम data change करते हैं. Rule number 9 which is logical data independence. Changes to logical schema must not affect applications, right? Then comes rule number 10 which is integrity independence. मतलब क्या? हर एक डेटा पे कोई ना कोई कंस्ट्रेंट होना चाहिए और वो सेपरेट होना चाहिए. ठीक है. रूल नंबर 11 विच इज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस. जो भी हमने लॉजिकली डेटा को स्टोर किया है, मैनिपुलेट किया है या डिफरेंटली स्टोर करा है, इट शुड नॉट बी visible to user. It should be secured, hidden, right? Rule number 12 which is the non subversion rule. ठीक है. No low level access should bypass security and integrity rules. मतलब क्या? Only authorized and integrated users should be given access to that. अगर विदाउट पासवर्ड डालते ही आपको अगर डेटाबेस का एक्सेस मिलता है, that's very harmful for your system, right? Next point, I guess this is the last point. Okay, ये थोड़ा सा सब पॉइंट है 1.1, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा है. ठीक है. ओवरऑल चैप्टर कितने का है? 12 मार्क्स का है. सो यू शुड नॉट स्किप इट. अभी दो तरह के स्ट्रक्चर लाइक दो मैंने दिखाए इधर स्ट्रक्चर, जो भी आपको कंफर्टेबल है यू कैन ड्रॉ इट. बट मोस्टली जो मैं सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ शो करूंगी वो ज्यादा एग्जाम्स के लिए प्रेफरेबल है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स वही यूज करते हैं. ठीक है. तो फर्स्टली यू कैन सी देयर आर एप्लीकेशंस, एंड यूजर्स और DDL. DDL मतलब क्या? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. हम कमांड्स पढ़ेंगे. व्हाट इज, देयर आर लॉट ऑफ कमांड्स, DDL, DML, DQL एक्सेट्रा. ठीक है.
तो वो हम सीखेंगे, बट फॉर नाउ यू शुड रिमेम्बर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एज DDL. उसके बाद एप्लीकेशंस एंड यूजर्स. Now, what these three communicate with is the DML. Now, applications communicate with DML compiler. There is a mechanism called query optimizer, जो system level पे convert करता है उसको. Right? So these three interact with these two, DML compiler and query optimizer. DDL separately interacts with DDL compiler, जो कि अलग compiler है. उसके बाद ये सब डेटा किस में स्टोर होता है? स्टोर्ड डेटा मैनेजर में. स्टोर डेटा मैनेजर के पास गया कि वो फिर डेटाबेस में स्टोर होगा कि इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, कंपाइल्ड डीएमएल. डीएमएल मतलब क्या? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. और डेटा डिक्शनरीज. ठीक है. नाउ इन दिस इफ आई टेल यू कि स्टोर डेटा मैनेजर, व्हाट इज स्टोर डेटा मैनेजर? डू यू नो व्हाट इज स्टोर डेटा मैनेजर? इज जो भी आप डेटा रिट्राइव करते हो, अपडेट करते हो बाय इंटरैक्टिंग विद द फाइल्स, तो वो जो ब्रिज है, दैट इज स्टोर डेटा मैनेजर. राइट? एप्लीकेशंस यू नो, एंड यूजर यू नो. ठीक है. डीडीएल मतलब क्या? डीडीएल कमांड से आप डेटा डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हो. डेटा डिक्शनरी में क्या होता है? मेटा डेटा स्टोर होता है अबाउट डिफरेंट टेबल्स, स्कीमास, कंस्ट्रेंट्स, रूल्स, वैलिडेशंस. राइट? क्वेरी कंपाइलर क्या करता है? मतलब इधर क्वेरी ऑप्टिमाइजर और डीएमएल कंपाइलर है. वो डीएमएल कंपाइलर को डीएमएल कमांड्स को ऑप्टिमाइज, मतलब यू कैन सी रीड और मीन करता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज, हम इसका डीप एक्सप्लेनेशन आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. अगेन ये अनदर आर्किटेक्चर है जो कि एग्जाम्स में प्रेफरेबल है. तो यू कैन सी कि नेव यूजर, what they use, application interface, application programmer write application program, sophisticated user use query tools, database administrator use administration tools. ठीक है. तो उसके बाद ये पूरा जो है, इवन इफ यू रीड इट, पिछले वाले डायग्राम का सेम है, सिर्फ इसमें कोई कोई कंपोनेंट्स न्यू ऐड करे. ठीक है. नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. ठीक है. अब इधर हम डीपली देखेंगे कि क्या है. अभी यूजर्स एंड एप्लीकेशंस मतलब क्या है? पीपल है, प्रोग्राम है जो डेटा एंड लाइक डेटा यूज करते हैं. ठीक है. रिक्वेस्ट करते हैं. क्वेरी प्रोसेसर क्या है? इंटरप्रिट करता है जो भी आप एसक्यूएल क्वेरीज डालते हो और एग्जीक्यूट करता है और आपको रिक्वायर्ड डेटा देता है. उसके बाद डेटाबेस मैनेजर विच मैनेज ऑल द डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन, अपडेशन, डिलीशन, क्रिएशन, व्हाटएवर इट इज. राइट? देन कम्स फाइल मैनेजर जो कि फिजिकल डेटा स्टोरेज और फाइल ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है. उसके बाद ट्रांजैक्शन मैनेजर, हमने देखा था रोल बैक कमेंट, वो सारे ऑपरेशंस को, वो ट्रांजैक्शनल ऑपरेशन को वो कंप्लीट है कि नहीं पूरे, वो इंश्योर करता है. स्टोरेज मैनेजर मतलब क्या? जो भी डिस्क है, जो भी मेमोरी है, वो उसको वो एफिशिएंटली मैनेज करता है. डेटा डिक्शनरी मतलब क्या? पूरा मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा वो डिक्शनरीज में स्टोर होती है, जो आप डीडीएल कंपाइलर से आप मैनिपुलेट कर सकते हो. उसके बाद रिकवरी मैनेजर जो क्या करता है? अगर कोई क्रैश हो गया, करप्ट हो गया डेटा, या फेल हो गया कोई सिस्टम, तो उसको रिकवरी के लिए वो काम करता है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट. राइट? So that's it. We have successfully completed 1.1 of Unit 1 of Database Management System subject. Thank you. If you like the explanation, kindly like, share, subscribe, and share this video with all your friends. It's free of cost. So please subscribe and like. Bye. And also comment down if you like this lecture. Right? Bye.